एक सबसे बड़ा टैलेंट ना कोई भी सक्सेसफुल आदमी के पीछे अगर हो ना तो वो हंगर है. The wrong question that people ask everyone is कौन सी लाइन में स्कोप when you know that you want to do business but you don't know what to sell. Number one thing is product. Find your product. Hello everyone, this is Parag Agrawal and I welcome you all to the PDA show, which is the Parag Agrawal show. And today I have with me Gaurav over here, who is my colleague, a friend, and also a great person to be with. And he has great ability to ask questions. That's what we've discovered about him. इसलिए हम कुछ चिट चैट यहाँ पे करेंगे एंड इनके काफी एक्सपीरियंसेस रहे हैं. जैसे हमारे कंपनी में ही इज प्लेड ऑल द रोल्स, राइट गौरव? आपने बहुत सारे डिफरेंट रोल्स यहाँ पे किए हैं. He will be asking me certain questions. We are here to share experiences. और सारे एक्सपीरियंसेस एक लर्निंग एक्सपीरियंसेस होते हैं जो कि काफी एनरिचिंग है. और it's been a long journey of 20 years which was taken to build the brand. It started with a purpose and which is some right things we've done which has got us over here. So उसी के बारे में आज हम बात करेंगे. Gaurav will be asking me certain questions and I promise to all of you that we will be giving you all honest answers. Let's start with your childhood journey. आपका childhood कैसा था? Like what did you study? Where did you study? So yeah, see, childhood, I was born in a business family, right? Business family में क्या होता है, हमेशा आपको so business क्या होता है, childhood or whatever you become is ultimately because of a mindset that you follow. True. So business family में we had a cloth business, my father, and joint family. तो joint family में वैसे ही आपको ना people management skill बड़ी अच्छे से आ जाती है. 100%. क्योंकि सबके moods अलग होते हैं, सबका रवैया अलग होता है. People have their own ulterior motives, agendas, everything. उसमें से अगर आप survive कर लेते हो and you are pleasing everyone, then of course I think that somehow teaches you the ability to manage people. जिस वजह से आज मैं काफी बार देखता हूँ, what I've learned is you see good in people and उनकी abilities, उनकी capacity देख लो. उनके जो negative तो देखो सब में ही होते हैं, उसको आप manage कर लो बराबर से. So talking about childhood, yeah, it was like always I was जैसे एक हमेशा होता था कि स्कूल अगर खत्म हो गई तो आपको दुकान पे जाना. दुकान पे जाके देखो. My dad used to make me sit with all the negotiations या dealings. एक गद्दी सिस्टम जो पुराना होता था ना वैसे था. तो it was from I'm not from Bombay, I'm from a small town called Dhule. वहाँ पे छोटी दुकान थी बट होलसेल कपड़े का बिजनेस था. So whenever स्कूल खत्म हो गई उसके बाद में आपको जाना है वहाँ पर और बैठना है. I used to get really bored. And that's what I'm going for. Was it exciting or like कि बस no, तब तो नहीं लगता था ना. तब तो पापा ने बोल दिया है कर रहे हैं और बस इसलिए जाते थे कि जाके कोल्ड ड्रिंक पीने मिल रही है, आइसक्रीम खाने मिल रही है, वही लालच होता था. तो उसलिए जाके. तो आप क्या करते थे? पापा क्या कराना चाहते थे आपसे? नोट गिनवाते थे. So वो एक चीज थी. तो एक अभी एक आदत हो गई थी. आप आज भी मुझे अगर नोट गिनने के दोगे तो आई एम प्रीटी क्लोज टू द काउंटिंग मशीन. और बिना देखे आप खट ऐसे नोट गिन सकते हो. तो और कुछ नहीं, उनके सब गिने हुए नोट होते थे तो भी हमसे गिनाते थे. ओके, तो यहाँ से प्रैक्टिस करो, बैंक में जाना, रिसीट भरना. सो ये सब कनेक्टिंग द डॉट्स बैकवर्ड्स व्हेन आई रियलाइज, मैंने देखा फ्यूचर में आके कि जब नए लोग आ रहे हैं, मैं किसी को अगर प्यून को भी सिखा रहा हूँ ये बैंक में स्लिप भरनी है, चेक डिपॉजिट करना है. सो दिस इज स्टिल, अभी तो फिर भी आपका यूपीआई, आरटीजीएस ये सब बहुत पॉपुलर हो गया है. Everything is digital. Yes, everything is digital, but still when I first started when I was 21, तभी होता ये था, I realized that these lessons were so important. Of course, the lesson you learn in childhood शायद आपको बहुत दूर तक लेके जाते हैं. बहुत दूर तक वैसे, लेकिन the worst is तब इतनी समझ नहीं होती कि आप उसको वैल्यू कर पाओ. कि हम लोग को तो लगता था, पहचान भी ऐसी थी कि बैंक में हम जा रहे हैं टोकन लेके कि ये विड्रॉ करना है सपोज कैश, और बैंक वाला टोकन लिए बगैर ही कैश दे देता था. अच्छा किसके लड़के हो, अच्छा यहाँ से लोग फेस वैल्यू में जानते हैं छोटी जगहों में. सो ये भी होता था. लेकिन द इम्पोर्टेंट पॉइंट इज कि बैंकिंग पूरी सिस्टम समझ में आ जाती थी. पता है कि चेक पे मैंने मतलब लोगों को ये रियलाइज किया है, ये तक नहीं पता होता कि स्लिप कैसे भरनी है. जो नए लोग जिन्होंने बैंकिंग ही नहीं किया है,
तो ये सारी लर्निंग्स है। वो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है ना, नेगोशिएशन। सो व्हाट माय डैड यूज्ड टू डू वाज ही यूज्ड टू मेक मी सिट देयर। ये अब यहाँ पे बैठा है, बोला काम क्या है मेरा यहाँ पे, नहीं मैं बात कर रहा हूँ, तू बैठा है। और वो चाहते थे कि आप उनको सुने और समझे कि किस तरीके से डील्स हो रहे हैं। या तो आई थिंक सबकॉन्शियसली समवेयर यू पिक अप थिंग्स कि किस तरह से आपको कब क्या बोलना है, कब नहीं बोलना है। तो वो इतनी मीटिंग्स मैंने देखी है ना, और नेगोशिएशन मतलब कैसे उनकी परचेसिंग होती थी कारीगरों से, कपड़े वालों से। तो एक वो पार्ट आपने देख लिया तो आपको पता है कि आप किस तरह से बाइंग इसकी कर रहे हो कपड़े की। और फिर अदर पार्ट में जब उसी चीज की सेल हो रही है तो क्या डायलॉग निकल रहे हैं। आई यूज्ड टू सी दैट हमेशा ही दैट प्रॉफिट के लिए रो रहे हैं कि अरे कुछ हो नहीं रहा है। तो एक बार इट वाज सच अ फनी इंसिडेंट, हम लोग को हमेशा बोला जाता था इस साल नुकसान ही है, कुछ कमाई नहीं है। एक बार हम लोग ने बुक्स देखी कि ये इतने में ये साड़ी खरीदी और इतने में बेची है। हमें हमेशा बोला गया बेटा अपने को 1 रुपया एक साड़ी पे मिलता है। यहाँ पे देख रहा हूँ आपने अभी तो 135 में किया था, उसको 250 में आप बेच रहे हो। तो फिर आई कन्फ्रंटेड माय डैड कि हम लोग तो बोलते अच्छा खर्चे नहीं देखे तूने, ये देख अभी अपन ने इतना खर्चा किया, आपने इतना खर्चा किया। सो दोस थिंग्स गेट इम्बाइब्ड, यू नो, एंड यू स्टार्ट लर्निंग। तो चाइल्डहुड ओवरऑल इस तरह से गया, लेकिन अल्टीमेटली इन सब की मेंटालिटी है ना जो थी, लाइक माय एंटायर फैमिली एंड एवरीवन वाज द सेविंग इकोनॉमी। क्योंकि ऑब्वियसली बैक इन डेज भी इतना ज्यादा चीजों में लोग खर्चा इतना नहीं करते थे। पुराने लोग वैसे ही थोड़े टाइट होते हैं, हम लोग थोड़ी बिगड़ी हुई जनरेशन। उस टाइम खर्चे करने के लिए एवेन्यूज भी नहीं थे। और सबसे इम्पोर्टेंट आई थिंक मैं बैठ पाता था उन मीटिंग्स में बिकॉज मोबाइल्स नहीं थे हमारे पास में। सो मोबाइल्स नहीं होने की वजह से देयर वर नो डिस्ट्रैक्शंस। इंस्टा नहीं था, नहीं तो आजकल तो हर 2 मिनट में इंस्टा शॉट लगता है ना सबको। इट्स लाइक today's life has become just like 15 seconds up 15 seconds में डिसाइड कर लेते हो क्या। आई थिंक सबको ADHD हो गया, सबको अटेंशन डेफिशिएंसी सिंड्रोम हो चुका है बिकॉज 2 सेकंड अगर आप खाली बैठ रहे हो यू वांट टू लुक एट द मोबाइल। सो चाइल्डहुड आई थिंक हम लोग सब ब्लेस्ड हैं, ये जनरेशन से अगर है जिसके हमारे चाइल्डहुड में अगर मोबाइल नहीं था, जो कि अभी राइट नाउ द करंट जेन ज़ी जनरेशन इट्स आल्सो स्कूड अप। तो आपके जैसे आज हम अपने बच्चे को बोलते हैं कि फोन मत देखो, तो अपने टाइम में तो कुछ तो ऐसा हुआ होगा ना कि बेटा बाहर मत जाओ खेलने, या ये मत करो वो मत करो। इतना आई थिंक नहीं। दैट्स व्हाट व्हेन आई टॉक टू माय पेरेंट्स, दे टॉक अबाउट देयर ग्रैंडचिल्ड्रन एंड दे से, यू नो बेटा यू वर बेटर, आप बहुत अच्छे थे, तुम्हारे बच्चे तुम्हारे भी ऊपर ही गए। तो ये तो हर जगह हम सुनने मिलते हैं। तो जैसे जैसे नेक्स्ट जनरेशन हो रही है और वर्स्ट होते जा रही है। तो आप अपने पापा को बोल सकते हो खुशनसीब है कि ऐसे बेटे मिले। हम तो बोलते ही हैं कि मतलब ये हमारे यहाँ पे कॉमन जोक है कि बागबान वापस देखना हूँ आपको, आपके बच्चे बागबान की तरह तो नहीं है। So yeah, but overall the experience of childhood was being in the business family, और ये जो भी overall इतना लंबा period वो रहा है। So the ambition and the most important thing I think एक सबसे बड़ा talent ना कोई भी successful आदमी के पीछे अगर हो ना तो वो hunger है। अगर hunger नहीं होगी ना, आप complacent हो जाओगे, तो फिर ड्राइव ही नहीं रहेगी, आपको कुछ करने का पर्पस में भी कुछ एंजॉयमेंट ही नहीं होगा। सो व्हेन ड्यूरिंग दोस टाइम्स मुझे जो समझ आता था कि आपको बेस्ट ही चाहिए सब कुछ, एंड आई कुड सी द बेस्ट हैपनिंग फॉर मी। सो later on you understand things like visualizations and manifestation and all of that, which I connect backwards कि हाँ मुझे ऐसे लगता था हमेशा कि हाँ मैं बिजनेस बहुत ही बड़ा बिजनेस करने वाला हूँ। उतना बड़ा हो नहीं पा रहा है अब तक, we are still striving for it, but yeah the ambition and hunger was always there. तो ये जो आपने वर्ड्स यूज किए, विजुअलाइजेशन, हंगर, एस्पिरेशन, ये आपको कब क्या एज में? आई एम श्योर स्कूल में तो आपको ये सब समझ पड़ता भी नहीं होगा। Like when did you come to know कि that manifested of what I was thinking at that time to become like my dad, or maybe some role model you had, maybe some businessman, movie star or whatever. So see, उस टाइम पे ना स्कूल में तो आप इतना ये सब लग्जरी और ये सब नहीं सोचते। उस टाइम पे सबसे इम्पोर्टेंट आपकी प्रोग्रामिंग और कंडीशनिंग ये होती है कि आपको मार मार के बोला जाता है कि मार्क्स अच्छे लाए, मतलब पढ़ना है बस। एंड बाय गॉड्स ग्रेस आई वाज रियली गुड विद स्टडीज एंड आई वाज अ टॉपर थ्रू आउट and used to score well. Okay. And dad had also always given importance to education, that you have to get the best education and see. And one thing he made very clear, see the business I had is a dying business.
because there is not much scope and it was 9 yard नवारी साड़ी जो होती है जी जी उस चीज का बिजनेस था जो फैशन खत्म हो रहा था so he knew that beta we are going to give you the best of education that's all I can give you no matter how much money it takes I'll get that to give you the best education but you have to get merit because I don't have money for donations right तो वो वहीं से जब आपके पास होता ही नहीं ना ऑप्शन फिर आपको करना ही है so that's what gives you the fire true so इसके लिए पता था कि अगर पढ़ाई नहीं करेंगे तो अच्छी लाइफ नहीं मिलेगी so what's your education like I've done engineering in electronics okay from the best of the college which was BJTI oh it nice. comes after IITs okay so that time और पता है जब हम वो एज में होते हैं ना सबसे कॉमन क्वेश्चन जो आज मैं सब जनरेशन को भी कहना चाहता हूँ कि the wrong question that people ask everyone is कौन सी लाइन में स्कोप है true वो मुझे तब भी फनी लगता था आज भी लगता है मुझे कभी भी मतलब शुरू टाइम में लगा था हाँ शायद कंप्यूटर्स में ज्यादा स्कोप होगा इलेक्ट्रॉनिक्स में ज्यादा स्कोप होगा बट देयर इज नथिंग कॉल्ड स्कोप ऑल यू नीड टू फिगर आउट इज व्हाट आर यू गुड एट ट्रू आप किस चीज में अच्छे हो वो आपको मालूम करना जरूरी है सो एक फनी चीज ये हुई थी उस टाइम पे ना हमारे पीसीएम होता था कि फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स के ग्रुप का टोटल हो गया आपको कॉलेज की एडमिशन हो रही है नाउ द सिस्टम्स हैव चेंज्ड एंड सो यू हैव टू गो इन द कॉलेज एंड गिव 3 चॉइसेस ओके कॉलेज और सब्जेक्ट ऐसे सो अ फ्रेंड ऑफ माइन मेड मी रियलाइज माय ब्रदर मेड मी रियलाइज सौरभ सी आफ्टर यू ग्रेजुएट नोबडी इज गोइंग टू आस्क यू भैया कौन से फील्ड में इंजीनियरिंग की है people are going to ask you kahan se ki true so now in BJT at that time computers was closing at 99% okay and I had 98% so I knew mujhe computers nahi milne wala but just for 1% 1% 98 is also a big thing I know but 98 पे भी admission close हो जाते थे तब भी okay so I was very clear मुझे लोगों ने सजेस्ट किया कि आप दूसरी कॉलेजेस ले लो यहाँ पे लेकिन कंप्यूटर्स में ही बेस्ट है कंप्यूटर्स में ही स्कोप है बिकॉज ऑब्वियसली इमेजिन इन 2000 कंप्यूटर्स वाज बूमिंग एंड एवरीवन वाज इन कंप्यूटर्स बट आफ्टर in the late 90s early 2000 computer has started it was yes. a big thing like a luxury thing और तब तो स्टार्टअप कल्चर वगैरह भी कुछ नहीं था बट फिर भी कंप्यूटर्स अगर आप करोगे तो आपको अच्छी जॉब मिल जाएगी आपको Infosys आएगा Infosys was booming that time also right. and people were like आपको easily 10 lakhs का पैकेज मिल जाएगा 5 lakh का पैकेज मिल जाएगा so ये क्वेश्चन से I remember always telling my dad कि he used to tell me कि 50,000 रुपए में is a good 5 lakhs का पैकेज this is how you start and you somewhere reach 25 lakhs and all and so say but मुझे वो आदमी बनना है जो 5 लाख दे सके मुझे वो बनना है जो वो एम्प्लॉइज ऐसे रख सके एंड इससे तू पागल जैसी बातें करता बट मुझे लगता था अच्छा मुझे तो यही करना है सो दैट इज व्हाट यू कॉल अ बिलीफ true now one more thing I've noticed is there is a very thin line between belief and wants अगर आप सोचोगे कि हाँ like what you try to manifest or what you believe in what you want they're two different things you must be wanting to believe you must be wanting to become rich and you believing that I am rich they're two separate things जो affirmations आज बोलते हैं जो ये सब आप जो करते हैं do you feel that happens I am not 100% I've not experienced I've experienced this so clearly I have such vivid memories about all of this because I used to talk about this I used to tell my dad कि I can see there are so many people working for me and with me and I'm building a company and he said ऐसे नहीं होता है so times have changed you need to get experience you need to work somewhere get experience and so हम लोग के campus placement भी बहुत होते थे कॉलेज में okay so but I didn't take up on it so अच्छा you did not take any because I used to feel यार मैं को जॉब करनी नहीं है तो मुझे rat race में घुसना ही नहीं है अगर मैंने ले ली तो किसी और जरूरतमंद को नहीं मिलेगा so why do I take it true you didn't have any peer pressure कि I have friends या family होता तो so उस टाइम पे मेरे जो भी close friends हैं कॉलेज के they all had best packages and they went to IIMs also and they got into Infosys and various other companies and they're all doing amazing many of them were traveling abroad also for jobs yeah. One went to Japan one went to US UK
So everyone used to get, there was 100% placement in our college. So in fact, once what had happened was, these friends of mine, they made me fill up the form for the interview. And we had a trip planned, boys trip to Mahabaleshwar. So we were on our way and got a call from college that, okay, I've been called for the interview. Okay. They made me stop in between and sent me back from halfway to the trip. Kyun? No, you need to. I said, no, I just want to do business. And they were like, no, we are saying for the good. तू मतलब तेरे अच्छे के लिए बोल रहे हैं, तू जॉब तो सिक्योर करेंगे. Okay. And I had to go. But yeah, story changed and I So like Fiona started from there, or there was something else also that you did? Okay, so this was again a very big thing. Okay, when you know that you want to do business, but you don't know what to sell. So the biggest, you're in the worst spot. So nothing's right like to continue your father's business or to get some sort of redevelopment or marketing things or with your own exciting ways. बट क्या मार्केटिंग थी ना, इमेजिन उस टाइम पे ना इंटरनेट इतना कुछ था कि आप गूगल करके आप कुछ कर लो. सो व्हाट हैड हैपेंड वाज, एंड लाइक यू सेड आज की फादर्स बिजनेस, तो ऑप्शन ही नहीं था. इट वाज एनीवेज डाइंग, देयर वाज नो स्कोप इन इट, द प्रोडक्ट वाज एनीवेज डाइंग. राइट. ऑल आई हैड वाज बिजनेस सेंस. आई हैड अ कॉन्फिडेंस कि मैं कुछ राइट प्रोडक्ट मिला तो मैं उसको बेच तो सकता हूँ. इस कभी बेचा नहीं था, बट एक कॉन्फिडेंस होता है, वो था. तो क्या था वो पहला प्रोडक्ट, और वो आइडिया कैसा है प्रोडक्ट पे आने से पहले? तो हुआ ये, so there's another entrepreneur, Mr. Rajesh Batwal, whom I consider as one of my mentors in the initial day. How do you know him? So he lives next to us in Dhule. His bungalow is next to ours. Okay. And he's also first generation entrepreneur, and he's built a public limited company now known as Phoenix. It's there to weighing scales. He's done engineering and he worked for someone for some time, and then he started on his own and built a huge empire by himself. So I had got a call from Hyderabad for a job interview. अभी ये in between जब engineering हो गई, एक साल हो गया, I was still looking for stuff, nothing was happening, everybody had gotten into jobs and everything. There were people who were getting bonuses already. 10 लाख का पैकेज है, 10 लाख तो बोनस में मिल रहा है, ये सब हो रहा है, मेरा कुछ हो नहीं रहा था लाइफ में. तो फोमो होता था. फोमो मतलब ये तो होता था, करूंगा क्या, ये तो नहीं करना, क्या नहीं करना बहुत अच्छे से करना. ओके. क्या करना है नहीं पता होने की वजह से डर तो सबको लगता है, लेकिन डर नहीं था इतना. इनफैक्ट the other day someone was asking me, were you ever under fear? So I never ever remember feeling of fear. Because fear is never a good motivator. आप डर के कोई मोटिवेशन आपको कभी नहीं आएगा. अगर आप खुल के और एक पॉजिटिव थिंकिंग से विदाउट एंजाइटी अगर कुछ काम करोगे तो 100% आप मोटिवेटेड फील करोगे. बिकॉज देन द बिलीफ इज देयर, द पॉजिटिव थिंकिंग इज देयर, and that keeps you going. True. So I was called to Hyderabad for this interview, and Mr. Batwal. No. Mr. Batwal is a neighbor. Okay. In Dhule. So I was supposed to go to Hyderabad from Dhule for this interview. Okay. And my dad said, why don't you meet him for advice? So I had my tickets at 4 p.m. I went to meet this guy, Mr. Rajesh, at 11 a.m. And he asked me, so what do you want to do? I said, भैया करना तो business है, but कैसे, how do I go about it? तो उन्होंने एक ही चीज पूछी, एक ही चीज बोली मुझे कि business करना है तो कैसे शुरुआत करने का सोचा. ऐसे पता नहीं, पहले कुछ एक्सपीरियंस ले लूं जॉब का, फिर देखेंगे. And he cut me right there. He said, business start करना है, जॉब में जाओगे, जब business का सोचोगे एक इवैल्यूएशन होगा, एक तुम्हें फर्दर कुछ तो उसमें मोटिवेटेड, एंड यू विल ग्रो इन दैट आल्सो, एंड यू विल ऑलवेज बी वेइंग कि अब मैं ये छोड़ के वो कैसे करूं. राइट नाउ यू ऑन अ क्लीन स्लेट. उस समय कंपैरिजन होता है, मैं अभी इतना कमा रहा हूं, एग्जैक्टली, कब कमाऊंगा मैं इतना. और फिर क्या होता है, आप एक बार फिर वो कमाई वो सब शुरू हो जाते हैं, आपके सब कुछ योर खर्चे, योर एवरीथिंग, ईएमआईज, एवरीथिंग स्टार्ट्स. देन इट्स एक्चुअली देन बेवकूफी की अगर आप उस स्टेज पे रिस्क लेते हो तो हिज एडवाइस वाज, जो करना है अभी करो, डोंट गेट ट्रैप्ड इन द रैट. ये करके ये भी. और मैंने कई बार अभी रिसेंटली मैंने देखा है लोग फ्रस्ट्रेट होके कि हाँ मैंने तो पैशन मेरा बिजनेस कर रहा था लेकिन मैंने जॉब कर लिया, तो अब मैं एक साइड हसल चालू कर देता हूँ जॉब करते हुए. ट्रस्ट मी, नहीं हो पाता.
वो पूरा डेडिकेशन नहीं हो पाता, यू आर नॉट लॉयल टू वन जॉब ऑफ योर्स, और ऑफ कोर्स देयर मस्ट बी एक्सेप्शन जिन्होंने ये करके भी दिखाया होगा, दे मस्ट बी सुपर ब्रेनी, बट ऐसे जनरली नहीं होता है. सो ऑल सेड एंड डन, तभी उन्होंने जब ये एडवाइस दिया तो ऐसे अच्छा ठीक है, ओके फाइन डन, बट मेरा तो अभी 4 बजे का इंटरव्यू है, मतलब 4 बजे मेरी ट्रेन है, मुझे जाना है. सो ही सेड कि वो एक साइड पे रखो, लेकिन अगर तुम्हें बिजनेस करना है तो स्टार्ट कैसे करो. I said, you tell me. He said, so see, number one thing is product. Find your product. What product you want to do, वो product find होगा तो उसके around company build हो जाएगी. So I said, यार product कैसे ढूंढूं? I said, that's your game. That no one can tell you. True. You think and you understand, और वो फिर उसके प्रोडक्ट मिलने के बाद आप कैसे करते हो आप करें. I got so motivated. And मतलब इसमें एक नॉर्मल किसी आदमी को शायद मोटिवेशन ना लगे कि इसमें मोटिवेशन क्या था, बट मुझे एक वैलिडेशन एक अथॉरिटी से ये मिल गया कि अच्छा ये पाथ लेना है अगर तो स्टार्ट तो यही है. आप ऐसा तो नहीं कर सकते कि आप जॉब कर रहे हो और फिर साइड में ये भी सोच रहे हो, क्योंकि आपको वो जॉब को भी आपका 100% देना है अगर आप कर रहे हो तो. So the thing is you have to give 100% whatever you do. प्रोडक्ट से पहले कभी ऐसा नहीं था कि कैपिटल क्या है मेरे पास, इतने लाख इतने हजार रुपए कुछ भी करने के लिए? तो वो एक हमेशा से एक ऐसा माइंडसेट था कि कैपिटल तो आ जाएगा, था नहीं हमारे पास ना, लेकिन वो तो हो जाएगा. once I have a strong plan and product in place, we will see what can be done. तो एक बार वो तो है, ऐसे में अच्छा मैं पैसा भी किससे कैसे मांगने जाऊँ, मुझे पहले कोई एक आइडिया भैया तुम बिजनेस किस बात के लिए चाहिए. तो इसके लिए वो थॉट, वो क्लैरिटी बहुत सिंपल थी, क्योंकि व्हाट यू आस्क्ड इज राइट. काफी लोग वहीं पे रुक जाते हैं, बिजनेस करने के लिए तो पैसा चाहिए, मैं क्या करूँ, यू नो, आप वहीं पे गिव अप कर देते हो. बट दैट इज रॉन्ग. इफ यू आर एन एंटरप्रेन्योर, इफ यू रियली वांट टू डू समथिंग, सो फर्स्ट फाइंड योर प्रोडक्ट, देन यू फाइंड द ब्रांड स्टोरी. अभी दूसरी चीज भी एक मैं बहुत देखता हूँ लोगों को, आई थिंक वी विल कवर दैट, इट्स अ वेरी बिग टॉपिक अबाउट यू नो ब्रांड, या अबाउट ब्रांड एंड प्रोडक्ट. तो द शॉर्ट में ये हमारी इस कन्वर्सेशन में इसको सिर्फ लिमिटेड में इतना बताता हूँ कि सो मेनी पीपल यू नो दे आर जस्ट बिहाइंड बिल्डिंग अ ब्रांड राइट फ्रॉम द स्टार्ट विदाउट हैविंग अ प्रोडक्ट. काफी लोगों को ये लगता है कि अरे ब्रांड हो तो अपने आप बिक जाता है. नो, इसके अंदर ब्रांड करेंगे तो कुछ प्रोडक्ट को करेंगे ना, यदि कोई सर्विस या प्रोडक्ट, कोई ज्वेलरी बेच रहा है, कोई फोन बेच रहा है, कोई फर्नीचर बेच रहा है. एग्जैक्टली. सो आप मुझे बताओ गौरव, क्या पहले आता है, प्रोडक्ट या ब्रांड? ऑफ कोर्स प्रोडक्ट. एग्जैक्टली राइट. ब्रांड तो अच्छा प्रोडक्ट होगा तो बन जाएगा, वो तो बन जाएगा, तो हमारे कस्टमर्स ही बनाएंगे हमारे. एग्जैक्टली. सो अनफॉर्चुनेटली सो मेनी पीपल टेंड टू थिंक कि अरे ब्रांड बना दो फिर कुछ भी बेचो. ऐसा नहीं है. पब्लिक पागल नहीं है. कस्टमर इज नॉट अ फूल, यू नो, दे आर वेरी स्मार्ट. वो एक सेकंड में, और अब तो मुझे लगता है एक तरह से सतयुग आ गया है, एक सेकंड में रिव्यू डाल देते हैं लोग. मतलब आप कुछ गलत कर ही नहीं सकते हो, यू नो, कुछ भी होते होते, मतलब इट्स लाइक डिजिटल एज इज क्लोज टू सतयुग. आप देखो ना, कोई भी कुछ काम गलत काम करने से भी कितने डरते हैं लोग. अरे वहां पे कैमरा होगा, वहां पे अगर मैंने कुछ कर दिया, किसी ने मेरा पोस्ट डाल दिया, किसी ने मुझे कुछ बोल दिया, वीडियो डाल दिया, सो पीपल आर से दैट्स सच अ गुड थिंग राइट. या इन अ वे आप सोचो मीटू जैसी चीजें पहले कितनी हुई होंगी, लेकिन कोई प्रूफ या कुछ था ही नहीं, तो people used to have their own way. Anyways, that's something different. So talking about this thing, so that day I got back motivated and told my dad, ऐसे ऐसे है, मुझे करना तो बिजनेस ही है. तो he was like, ये इंटरव्यू का क्या करेंगे, वो तो go to Agrawal. I said I really don't want it. He took my ticket and told it off. Okay. I said okay, you can. What was your age that time? I was 20. Okay. Yeah. So that was the time, and then लक्ष्य ही था कि भाई प्रोडक्ट ढूंढना है, क्या करना है. So then the entire story started. What was the first thing? How did you started building ideas? Like were you meeting people with maybe different business who are doing कि आप ये काम कर रहे हो, क्या आइडिया है, आप ये कर रहे हो. So उस टाइम तो इंटरनेट भी नहीं होता था कि आप कुछ सर्च कर ले. Correct. Would be something कि आपके रिलेटिव्स या आजू बाजू वाले क्या कर रहे हैं. So इंटरनेट नहीं होता था, but लाइब्रेरीज होती थी. Yes. So I segregated stuff into 2-3 things. Number one was get into some kind of exports. मुझे पता था कि अगर आप एक्सपोर्ट कर सकते हो कुछ, you find something which you can export. So I was exploring opportunities for cement export.
ओके क्योंकि उस टाइम पे भी मैंने ये समझा था कि मेट्रिक टन्स में और ह्यूज क्वांटिटीज में सीमेंट एक्सपोर्ट होता है इंडिया से। एंड अदर वाज फैब्रिक बिजनेस एनीवेज, कपड़े का, तो उसमें और इंटीरियर जाके यार्न का बिजनेस, या तो आप यार्न चाइना से इंपोर्ट करो या फिर कॉटन यार्न एक्सपोर्ट करो। ओके सो आई स्टार्टेड एक्सप्लोरिंग दैट। एंड थर्ड वाज, सिंस इंजीनियरिंग की है तो इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स के इंपोर्ट या असेंबली लाइन कुछ करके वी कैन इंपोर्ट पार्ट्स, असेंबल इट एंड सेल इट हियर। ओके तो ब्रॉडली ये 3 बकेट्स मैंने बनाए और इनके ऊपर रिसर्च करना शुरू किया। सबसे पहले तो अभी एक्सपोर्ट है। जैसे आपने पूछा पैसा कहाँ से आएगा, तो एक्सपोर्ट में समझा एलसी खुलती है। अगर आपके पास में कस्टमर है, मतलब लेटर ऑफ क्रेडिट। ओके सो एक्सपोर्ट बिजनेस में if there is you have a buyer, they open a bank LC, ओके by which they give a letter of credit on which the bank funds you कि आपके पास ऑर्डर है, पीओ है इस चीज का, तो आपको ओपीसीएससी पैकिंग क्रेडिट देती है। तो ये सब टर्मिनोलॉजी सीखने के लिए आई यूज्ड टू डेली, मैं बॉम्बे आ गया, बॉम्बे से जाके डेली जाके एशियाटिक लाइब्रेरी जाना। ओके वहां पे जाके नोट्स बनानी है कि एक्सपोर्ट बिजनेस क्या क्या होता है, टर्म्स किसको क्या बोलते हैं, एलसी क्या होता है, यूजांस एलसी क्या होता है, और सारी टर्मिनोलॉजी सब कुछ पढ़ा। और साथ में फैब्रिक की भी एक्सप्लोरेशन की कि कहाँ से फैब्रिक आता है, कौन से टॉप एक्सपोर्टर्स हैं, फिर इंपोर्टर्स कौन कौन है। देन यू गेट अ हैंडबुक कि कौन कौन करता है। देन आई लिस्टेड डाउन द ईमेल्स ऑफ ऑल द पीपल हु इंपोर्ट दोस प्रोडक्ट्स एंड स्टार्टेड ईमेलिंग देम एवरी डे ओके कि we are manufacturers of this and to see if उस टाइम इतना ईमेल होता था ऐसे ईमेल तो होता ही था। आपके पास होगा शायद, सामने वाले के पास ईमेल एड्रेसेस होते ही थे ना, जो एक्सपोर्टर्स करते थे, एक्सपोर्टर्स जो काम करते थे उनके पास तो होता ही था। ओके एंड अदर थिंग व्हिच स्टार्टेड वाज जो इलेक्ट्रॉनिक्स इक्विपमेंट्स में, अगर ये आपको इलेक्ट्रॉनिक्स इक्विपमेंट्स असेंबल करने हैं, सो व्हाट डू यू डू फर्स्ट, यू हैव टू थिंक ऑफ अ इंडस्ट्री, राइट, कि आप कौन सी इंडस्ट्री के लिए प्रोडक्ट बना रहे हो। तो पता नहीं समथिंग केम अप और माइंड में ज्वेलरी इंडस्ट्री है। ओके सो ज्वेलरी इंडस्ट्री में I started thinking, okay, now I remember. You have any background? I mean, family में कोई ज्वेलर हो, Nothing. कुछ भी हो? अमेरिकन डायमंड उसमें क्या फर्क, कांच क्या, कुछ पता ही नहीं था। नॉट इवन कि कोई फैमिली में बहुत डायमंड्स लेते थे या ज्वेलरी लेते थे, ऐसा कुछ नहीं। क्योंकि मैं जैसे जितने ज्वेलर्स को जानता हूँ, कुछ ना कुछ कनेक्शन होता था। करेक्ट। और वो बोलते थे कि आपको किसी का तो बैकिंग चाहिए, कोई बड़ा ज्वेलर हो, करेक्ट, जिसके अच्छे कनेक्शंस हो, अदरवाइज आप इस धंधे में, ज्वेलरी फील्ड में आप शायद उतना ग्रो नहीं कर पाओगे। करेक्ट, एब्सोल्युटली राइट। So didn't that held you back? Yeah, but what happened was, तो it's always circumstantial। अगर आप किसी की भी स्टोरी या कुछ भी देखोगे, तो हमें कुछ टाइम पे कुछ लोग उस टाइम पे मिल जाते हैं जो कुछ एडवाइस देते हैं, और हम उसमें कॉन्शियसली कुछ एफर्ट डाल देते हैं, तो समथिंग गुड कम्स आउट ऑफ इट। So similarly, I had a very close friend, Pankaj Rathod, with me in school, who are very big known jewelers in Pune. अच्छा। So this guy was never interested in sitting in his dad's business. Okay. So that's another story. Now he's opened a diagnostic center for pathology and different collection centers in Pune. He's doing great for himself, and तो उसने तो ये काम किया नहीं। I took advice from his dad. His dad said कि बेटा आपने इंजीनियरिंग की है, तो आप अभी डायमंड टेस्टिंग इक्विपमेंट्स में ना कोई भी मतलब एडवांस चीजें नहीं है। ओके। और जैसे अलग अलग जेम स्टोन्स, एमरल्ड्स, रूबी, सफायर से रियल है या नहीं, उसका एक प्रेसिडियम का मशीन आता था, उन्होंने मुझे दिखाया एक पेन टेस्ट। प्रेसिडियम मतलब ब्रांड? इट्स अ ब्रांड, एक ब्रांड है प्रेसिडियम। तो उन्होंने उस पे दिखाया कि देखो इसको ये टच करते हैं तो ये एमरल्ड को एमरल्ड दिखाता है, रूबी को रूबी दिखाता है, और इस तरह से इफ यू कैन डेवलप ये भी, लेकिन ये राइट मशीन नहीं है। अच्छा। ये कुछ फेक स्टोन्स को भी रियल दिखा देता है। Okay. I got very excited with that thing. Okay. कि ये पता नहीं, बस वो होता है ना, something pulls you. So I was like, चलो this looks like I should explore this. And that time, my brother, Saurabh, elder brother, who was also the co-founder with Fiona. Okay. He was in the US. He was studying. So I discussed with him कि ये ऐसे ये है. So he said, why don't you do a survey कि ऐसा कुछ आता है क्या मार्केट में या होता है? So I made a questionnaire। अभी ये सब जो चीजें ना, ये ऑटोमेटिक आपको आती है। अब मैं देखता हूँ काफी लोग जो बिजनेस एग्जांपल्स या बिजनेस गाइडेंस देते हैं,
वो यही चीजें बताते हैं कि आपने फीडबैक लेना चाहिए, आपने मार्केट सर्वे करना चाहिए। सो ये सब चीजें मुझे कभी सिखाया नहीं गया था, लेकिन ये आपको लॉजिकल रीजनिंग से, तो मैं एक बात हमेशा सबसे कहता हूँ, जब भी कोई भी मेरे पास कोई चीज के एडवाइस के लिए आता है कुछ है, या मुझे खुद को भी कुछ चीज एक्सप्लोर करनी होती है, सो देयर इज वन थिंग व्हिच इज इम्पोर्टेंट, यू शुड बी आस्किंग योरसेल्फ द राइट क्वेश्चंस। ट्रू। अगर आप कई बार ना आपको जवाब की जरूरत नहीं होती, राइट क्वेश्चन पूछ लोगे ना तो आपको जवाब ऐसे ही मिल जाएगा। उस चीज के लिए मैं बहुत फेमस हूँ, या बदनाम भी हूँ शायद। मैंने तो सुना है आपके लिए क्वेश्चन मार्क का भी ऑफर आया है। अब लोगों का प्यार है, वो कुछ भी कर देते हैं। Yeah, so but you know the importance of asking the right questions, but I'm also a victim to your questions, by the way. Because your follow-ups are the best when you keep asking for certain things. तो हमें खुद को लगता है अरे पता है यार इसका जवाब नहीं है इसलिए मैं नहीं बोल सकता हूँ। But anyway, so you get it right. So right questions are very important. So I made a question है, उसमें सिंपल 4-5 क्वेश्चन है कि are you currently using any equipments to test diamonds? ये क्वेश्चन आपने बनाया बाकी ज्वेलर्स से पूछ? ज्वेलर्स के लिए। Okay. I made a question as set जो जिसमें अलग अलग क्वेश्चन थे, और हाँ, so one more thing, when my friend's dad was showing me this, तभी उन्होंने मुझे उसी मशीन पे लिखा था मॉइसनाइट। ओके। सो उस टाइम पे तो मॉन्जोनाइट, मार्बोनाइट, वो उसको प्रोनाउंस भी कैसे करते हैं ना किसी को आया नहीं। सो लाइक अ टंग ट्विस्टर। टंग ट्विस्टर मतलब है क्या ये मॉन्जोनाइट? आई स्टार्टेड एक्सप्लोरिंग इट कि ये है क्या। तो फिर समझ में आया कि सर दिस इज समथिंग वेरी क्लोज टू डायमंड, इट इज नॉट अ डायमंड। और इंडिया में तो कभी आया उसके बहुत सारे किस्से, फिर मैंने बहुत अंदर डीप में घुसा तो पता चला कि लोगों ने इसको ही रियल डायमंड बोल बोल के बेचा है। Okay. And there was because it looks like a diamond, very close to like a diamond, and nobody had seen it. It was so close कि अब तो जैसे बहुत इजी है जूलर्स को, जर्मोलॉजिस्ट को पता है उसको आइडेंटिफाई कैसे करना है। इट्स वेरी इजी, उसके रेनबो इफेक्ट्स आते हैं, कुछ कुछ चीजें हैं, तो उससे वो आप पकड़ सकते हो उसे। सो विद दिस वी मेड अ सर्वे which had question कि are you using any equipments to test your diamonds or gemstones, and would you like to buy if you get something which distinguishes between this, and ये सब चीजें। we made a question and did a survey with over 200 jewelers in Bombay. Okay. और major सबके answers ये आए, of course we would love to see it and all of that. तो जैसे आपने बोला कि उनके पास एक मशीन था जो आपने देखा था, तो ऐसे और भी ज्वेलर्स के पास थे या नहीं थे? Was it too expensive for that time? No, it was not expensive also. It was hardly some 15-20,000 का machine. Okay. और ये hardly कुछ ज्वेलर्स के पास जो टेक savvy थोड़ा शौक रखते हैं उस तरह के थे। तो कभी कोई ज्वेलर ने से रखने के लिए सोचा नहीं कि कोई रिटर्न करने आता है कि असली है नकली है पहचानने के लिए? So moissanite की awareness ही इतनी नहीं थी. So I think jewelers at that time were using it more like a selling tool, you know. Okay. कि है हमने कि हमारा रियल रियल नहीं, रियल और फेक का मशीन नहीं था। ये एक्चुअली से बताता था रूबी सफायर है, ओके, या कुछ है, ये नहीं बताता था रियल है कि फेक है। ओके। सो यू नो देयर आर सर्टेन, अभी वो एक बहुत डीप सब्जेक्ट है अलग से कि आप सर्टेन ऐसे क्लोज क्लोन्स और ग्रोन रूबीज और एमरल्ड्स आते हैं जो उस मशीन को भी फूल कर देते हैं। ओके। सो then we thought कि चलो this seems like a very interesting business, so why don't we import this? Then I told my brother Saurabh to find out कि ऐसे कोई machines आते हैं। Luckily he found out in Miami, US. उस टाइम how do you used to find out? Like आज तो इंटरनेट है, अब सर्च करो। Google तो था ही। See, Google was not so popular, था तो सही ना। But were many players online? No, that's what. They were not, but big players certainly were. Okay. So we found out and we came in connection with this RS Maizar. Was the company name I remember, who used to sell those equipments. अच्छा. वो equipments हमने उसने डील किया जाके कि okay, let me buy 10 testers from you. I'll ship it to you to India. And then देखते हैं where it leads you to. And he sent certain small moissanites also to test. So basically these were moissanite testers. Okay. And they could distinguish between a moissanite and a natural diamond. Okay. जो बिल्कुल भी पॉपुलर नहीं थी इंडिया में। So first shipment I remember, and ये जो जिन लोगों से सर्वे किया था, and the cost of that equipment was in Indian rupees around 3-3,500 रुपया।
उस टाइम पे। या सो द फर्स्ट स्टेप वाज, अभी सर्वे वगैरह हो गया तो अभी फर्स्ट क्या करना है, कंपनी खोलनी पड़ेगी। तो सैंगविन इंडस्ट्रीज वाज द फर्स्ट कंपनी विद द माइंडसेट कि हम इंपोर्ट एक्सपोर्ट करेंगे ऑफ वेरियस इक्विपमेंट्स इनटू डायमंड ट्रेड। और वी वांटेड टू पहले से ही गिव अ नेम व्हिच वुड work as a importer and exporter and sound like an industries to people where we could manufacture। अब जो भी जितना भी दिमाग उस टाइम पे होता था कि we have to look big, right? उसका logo डिजाइनिंग से सब कुछ। so name was very important, it was important कि हम इसको प्रोडक्ट को अपना ही प्रोडक्ट बोल के बेचेंगे, that we are importers but selling it under this brand name। क्योंकि इतना पता था कि लोगों को सर्विस का इशू आएगा, लोग पूछेंगे आप सर्विस कैसे दोगे, ये किसका है क्या है। सो वी इंपोर्टेड इट आनी एंड चेंज ऑल द लेबल्स। उसके लेबल्स आरएस मिजार जो उसकी कंपनी थी निकाल के हमने अपनी लेबलिंग की। ओके, द आइडिया वाज कि हम इंपोर्ट करके, मतलब स्ट्रैटेजी मोर देन द आइडिया, द स्ट्रैटेजी वाज कि हम इसको ये मशीन्स को ऐसे अपने नाम से बेचेंगे और बैकएंड में मैं इसका रिवर्स इंजीनियरिंग करूंगा। ओके, जो कि ये सर्किट हम खुद बना के इसकी कॉस्ट रिड्यूस कर सके। बिकॉज इतना तो पता था कि पीसीबी जो प्रिंटेड सर्किट बोर्ड्स होते हैं उस पे जो आईसीज वगैरह कैपेसिटर जो भी कुछ लगते हैं और वो हम बना सकेंगे। तो व्हेन द फर्स्ट शिपमेंट केम इन वी सोल्ड इट ऑफ अलग अलग जूनियर्स के पास जाके, डोर टू डोर आई यूज्ड टू गो इन पुणे एंड सेल इट टू डिफरेंट पीपल एंड आई स्टार्टेड रिवर्स इंजीनियरिंग। ओके, तो 2 मशीन खोल दिए और वो सर्किट कहाँ से, डायग्राम कहाँ से क्या आता है, आई कुड मेक इट। आई अंडरस्टूड कि ये बनाने का, वुड यू गेस कितने का खर्चा होगा उस मशीन को अगर वो मुझे घर में बनानी, तो सर्किट कितने में बनाया? आपने जैसे बोला वो आप 3000 में बेचते थे वहां से? 3000 में आता था। हम 12000 में बेच रहे थे। 12000 में बेच रहे थे। How much? 1000 rupees? 100 rupees। वाओ। तो इलेक्ट्रॉनिक्स ऐसे ही होता है, इलेक्ट्रॉनिक्स के जो कंपोनेंट्स हैं 1-1 रुपए के कैपेसिटर्स आते हैं, ऐसे आएगा कुछ। तो मेन मतलब वो ऐसे हो गया था कि कढ़ाई से कलाई महंगी है, आपका सर्किट तो सस्ता आ जाएगा, उसका मेन हार्ट जो है उसकी सस्ती आ जाएगी, लेकिन उसकी जो असेंबली है, बॉडी है प्लास्टिक की है, द लुक एंड फिनिश, बॉक्स, पैकेजिंग एंड एवरीथिंग, ऑल दैट एड्स अप ऑफ कोर्स। लेकिन आप लार्ज स्केल पे अगर प्रोडक्शन करोगे तो सब बराबर से हो जाएगा। सो लाइक द स्ट्रेटजी we started importing that and selling it, and साइड में इसकी ये चल रही थी कि सर्किट बराबर बन जाए। ओके, तो एक पॉइंट पे लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, you had a team or like it was just no it was me alone। अच्छा, me alone। so ये बहुत चैलेंजिंग होता था। अभी आप जाओ कहीं किसी से बोलो कि भाई आप ही ओनर और आप डोर टू डोर आके मशीन बेच रहे हो, तो कितना फनी। अब मैं सोचता हूँ तो मुझे खुद को हंसी आती है कि लोग मुझ पे यकीन कैसे कर लेते थे। नहीं ऑफ कोर्स, मतलब आप खुद ही बना रहे हो और वो टेक्निकल नॉलेज, मतलब कुछ इस टाइप का भी था या नहीं? टेक्निकल नॉलेज जस्ट कि बस करना है, नहीं टेक्निकल नॉलेज थी। और कभी किसी से झूठ भी नहीं बोला, मतलब ऐसे नहीं कि मैं जाके लोगों को फेंक रहा हूँ कि अरे हमारे पास 100 एम्प्लॉइज है, हम ये करते हैं, हमारी इतनी बड़ी कंपनी है, कुछ नहीं। I used to go give them my card, enter, I used to tell them so okay, my selling technique was very unique। what I did was वो moissanite जब आया, made a ring, went to the jeweler कि as a customer, okay, कि अब ये तो डायमंड है, मुझे बेचना है, अच्छा इसका क्या प्राइस है? They used to offer me moissanite जो 1 कैरेट का है, ये 2.5 लाख रुपए आ जाएगा। तो they didn't used to recognize ये नहीं था ना, किसी को पहचान होती नहीं थी। Back 20 years back, उस टाइम ज्वेलर्स को नॉलेज होगा ना कि मॉइस्चराइजर कुछ कोई नहीं स्टोन है, कोई नॉलेज नहीं थी, कोई किसी को। मैं आपको बता रहा हूँ ना कि मॉइस्चराइजर प्रोनाउंस करना नहीं आता। ओके, ये होता क्या था लोगों को नहीं पता। सो इट वाज, सो आई विल टेल यू वन मोर इंसिडेंट आई जस्ट रिमेंबर्ड इन बैंगलोर। सो मुझे बहुत मजा आने लगा, मैं जा रहा हूँ, लोग देख रहे हैं, 2 लाख रुपया दे देंगे, फिर मैं बोलता था सर बाय द वे डायमंड नहीं। क्या बात? सर ये मॉइस्चराइजर है, ये सिर्फ 15,000 का, ऐसे ऐसे, और ये लो टेस्ट है। अगर आज मेरी आपको होता तो आप 2 लाख में आपका नुकसान हो जाता, ये हो जाता। Then they used to praise me, वाओ क्या हुआ आप, ये वो, इमीडिएट बोला आप क्या एक्सपेक्टेड, बोला बस मेरा मशीन ले लो। 12,000 मशीन से ज्यादा स्टोन में इंटरेस्टेड नहीं थे। एग्जैक्टली। सो फिर मुझे लोगों ने बिठा के पूछा, भाई ये मशीन छोड़ो यार, आप ये स्टोन का बताओ, ये कहाँ से लाए हो? ये बड़ा मजेदार है, और ये मशीन बेचना बंद कर दो।
कुछ जूलर्स ने मुझसे कहा कि मशीन आप तो क्या कर रहे हो बताया, वायरस और एंटीवायरस दोनों बेच रहे हो यार साथ में। तो इसलिए इट वाज लाइक दैट, सेलिंग moissanite and the machines together was selling virus and antivirus both together. तो वैसे भी ये कॉमन एक कॉन्स्पिरेसी थ्योरी जैसे लगता है ना, हम सब बात करते हैं कि सारे एंटीवायरस कंपनीज ही तो वायरस बनाती होंगी, हाँ, कि ताकि उनका एंटीवायरस और स्पाईवेयर ज्यादा सब बिके। तो उस वे में ये स्टार्ट हुआ। तो भी एक इंसिडेंट ऐसा हुआ, मैंने यही टेक्निक से, इट वाज वर्किंग वेल, सब लोग ऑफर करते थे और फिर मशीन बिक जाती थी। दे यूज्ड टू थिंक कि हाँ यार 12,000 क्या तो इन्वेस्टमेंट है, ऐसे अगर किसी ने कोई बेचने आया और उससे हमने ज्यादा प्राइस में स्टोन ले लिया तो कहाँ जाएंगे। हाँ, सो बैंगलोर में देयर वाज वन jeweler, ओके, शिट, इट वाज सच अ हॉरिफाइंग एक्सपीरियंस। आई वेंट एंड सेम ये बेचना है, हाँ, गाय से बैठो ज्वेलर ने बोला, हाँ, वो एक बेल बजाई का आदमी बोला इनको वहाँ उस कमरे में लेके जाओ बैठो, ओके, मैं बोला ओके, बैठ गया। फिर आके बोलता है भाई अभी आधे घंटे में पुलिस आ रही है, तो ये जो स्टोन आपने दिया ना, आप जो कर रहे हो ना, हाँ, ये नकली, ये डायमंड, और जो डायमंड बेच के आप हमको कहाँ से लिया था पहले हमको बताओ, बताओ। बोला सर सॉरी मेरी गलती हो गई। तो उन्होंने पहचान लिया, उन्होंने पहचान लिया, he was really good and he knew what moisturizers are, and मतलब लाखों में एक केस था वो। तो were you expecting such kind of thing? Do you think I would be doing such a thing if I would be expecting it? मैं तो, क्योंकि सी इंटेंट अच्छा ही था, इंटेंट वैसे ही ये था ही नहीं ना, तो मुझे क्यों ऐसा लगेगा कि बस सामने वाला तो वैसा नहीं सोच रहा होगा ना कि आप क्या इंटेंट से है। हाँ, बट अरे वैसे भी मुझे तो अगर ऑफर भी करता था मैं तो पैसे लेता नहीं था ना, हाँ, तो इसलिए मेरे ऐसे दूर दूर तक दिमाग में नहीं था कि ऐसा कोई उल्टी बात करेगा मुझसे, और तो ये एक्सपीरियंस आ गया। इसने बोल दिया कि भाई आप तो ये आप लंबे जाओ, ये ऐसा से सर ये मेरा कार्ड है, ये मेरी कंपनी है, ये नाम है, मैं डायमंड इक्विपमेंट टेस्टिंग मशीन, ये देखो मेरा बैग, सारे टेस्टर्स हैं, मैं ये बेचने के लिए मेरी टेक्निक ऐसे ऐसे करता हूँ। मरोगे कोई दिन। But he didn't laugh. Okay. He was still serious. He was like, this is not the way you do it. मैं मन में सोच रहा हूँ मैंने तो बहुत सारी मशीन भेज दी है सर, what is not the way to do it? I don't know any other way and I think this is the best way. But बोला no, so sorry sir, I'll never do it again. I'll never do it again. But will you buy the machine? He did buy the machine though. So that was one experience. And फिर ये बस ऐसे ही हुआ कि जैसे लोग ज्यादा से ज्यादा moissanite मांगने लगे और इतना इंटरेस्टिंग हो गया, then I told Saurabh that yeah, people are asking for more of these moissanites. Why don't you ship a few stones to me? And उस तरह से फिर मैं दोनों चीजें साथ में मिलने लग गया। फिर मैं जाके as in stone moissanites और machines, yes. फिर होता ये था अंडर द सेम कंपनी नेम, सेम कंपनी नेम ना, क्या फर्क पड़ रहा है, उसके लिए अलग कंपनी थोड़ी खोलेंगे, वो खर्चे लगते हैं। तो फिर it was a very great experience, but then I changed the strategy. I did not want that horrifying experience again of going and trying कि ये बेचने आया हूँ। But would one experience change your thought कि मैं तो ज़्यादा बेच चुका हूँ? He really intimidated us all. Okay. कि और फिर उसने जिस तरह से मुझे समझाया, I thought कि ये एक तरीके से एक great approach नहीं है. It is somewhere kiddish. It is somewhere not long term नहीं आप कितना करोगे ये, मतलब you'll be making a fool of yourself. See, आज एक एक्सपीरियंस जिसने आपको पकड़ लिया, मेरा इंप्रेशन तो उसके ऊपर खराब हो ही गया कि ये क्या, आज वो ऐसा, वो जिसने पकड़ लिया वो पता है क्या सोचता है कि इसको अगर मैं पैसे दे देता तो शायद ले लेता, हाँ, वो डाउट कैसे निकालूंगा वो, so that is what hit me कि हाँ वो ऐसा सोच रहा है, उसको नहीं पता ना कि मैं मना करने वाला हूँ इतने पैसे लेने से, तो इसलिए I changed that strategy. Okay. And फिर I used to go, hi, have you heard about moissanite? सीधा क्या moissanite क्या, फिर वो फिर with the intent of selling moissanites? No. With the intent of selling machines. Okay. moissanite की मेरी strategy ऐसी होती थी, let him ask. तो जो अमेरिकन डायमंड है तो उससे कंपैरिजन क्यों नहीं किया कि असली नकली आपके पास आएगा तो चलो पहचान लेंगे। तो अमेरिकन डायमंड तो जूलर्स वैसे ही पहचान लेते हैं, you don't need a machine for that. Right. आपको दूंगा आप भी पहचान लोगे, आप भी पहचान नहीं लेते हो। बट फॉर अ लेमैन शायद कि उनका कॉन्फिडेंस जीतने के लिए ऐसा नहीं होता है। नहीं, लेमैन को भी इनफैक्ट आप देखेंगे अगर अभी आज के हमारे कस्टमर्स हैं जो डायमंड बायर्स हैं,
वो खुद ही पहचान सकते हैं अमेरिकन डायमंड, तो इट इज एनीवेज नॉट अ बिग डील. सो मॉइजनाइट वाज अ टफ कॉल इन दोज डेज, क्योंकि लस्टर ब्रिलियंस ऐसा और कोई स्टोन में होता नहीं था. True. That's the reason. So it just happened, And it shines more than a diamond. Yeah, it has more brilliance than a diamond. So that was the story which, slowly evolved, and then machines वगैरह moissanite के इतनी ज़्यादा import होने लगे. All the jewelers started asking for that more of moissanite than the testers. Right. और मतलब tester भले ही नहीं लो, moissanite तो लेते ही. True. So where did you travel like with the intent of selling these machines? I went to Chandigarh, Hyderabad, Bangalore, Delhi, Lucknow. Okay. You name it. All alone? Train लिया, all Had alone. somebody with you? Nobody. Okay. ट्रेन लो, जाओ, एक अच्छा सा लॉज लो, Mhm. वहाँ पे रुको, बिकॉज एवरीथिंग वाज बॉटम लाइन, राइट. Right. आप कितना पैसा बचा, मनी सेव्ड इज मनी अर्न. True. ये सिंपल सा फंडा था. और दिमाग में ये था कि सेल लानी है, कैसे ज्यादा. अभी एक ही चीज जो मैं रिग्रेट करता हूँ, या रिग्रेट या कोई सिखाने वाला या बताने वाला जो उस टाइम पे नहीं था ना, वो स्केलिंग. ये समझ नहीं थी उस टाइम पे कि स्केलिंग किसे कहते हैं, हाउ डू यू हैव ऑर्गेनाइज्ड बिजनेसेस, हाउ डू यू स्टार्ट, एंड व्हाट शुड बी योर, यू शुड बी हैविंग अ विजन. उस टाइम पे ना विजन से ज्यादा जज्बा था, आई थिंक, कि बस करना है. बस. So I think that could be the starting step. Yeah. शायद काफी उस एज में ये फील तो करते ही होंगे, लेकिन आई थिंक शुरू करो, फिर तो हम देख लेंगे आगे जैसे चलता रहेगा. करेक्ट. सो ये वो स्टेज में, लेकिन वो टाइम भी अलग था. Right. वो टाइम पे आप ऐसी सोच रख सकते थे. आज के टाइम में अगर ऐसी सोच रख के कोई निकले ना, तो इट्स अ डेड एंड, because things have drastically changed now. It's so different, and there is so much of digital. You have to do everything of everything. Only then you will be, Right. So that was one of the insights from there. So quickly, I'll just tell you another small story of how we then transformed to being completely into jewelry. When was that taking point? Yeah, I next one. How did Fiona start the jewelry thing? So I sold the tester to one of the famous jewelers, Vamanari PDA. Okay. In Pune. Okay. So हुआ ऐसे कि उस टाइम पे ना VAT वैट था, और उन्होंने सैंपल के लिए अपने कस्टमर्स को दिखाने के लिए कुछ मॉइजनाइट के स्टोन्स लिए थे मुझसे, और मैंने गलती से उनसे ना वैट ज्यादा कलेक्ट कर लिया. अच्छा. तो व्हेन आई वाज डूइंग अकाउंट्स विद माय डैड, ही सेड, बेटा इनसे कुछ आपने 5-6 हजार का वैट ज्यादा ले लिया है, प्लीज गो बैक एंड रिटर्न. So I went back after 20 days or something. I told him, he said, I was looking for you. I lost your card somehow, and मुझे आपसे कांटेक्ट करना था. I said, क्या हुआ? He said कि उनके कोई कस्टमर को मॉइजनाइट्स चाहिए थे, तो इसलिए मुझे ढूंढ रहे थे. Okay. तो imagine one good deed of returning the extra VAT. उसके लिए मैं उनके पास गया, उन्होंने एक लीड दी मुझे. And so was he promoting moissanites? No, he was not at all. They will never sell moissanite. He just kept it for his own studies. अच्छा. लेकिन because वो मैं VAT वापस देने गया, he happened to talk to one of his customers. अच्छा. तो because he didn't want to do it himself, he just recommended कि हम नहीं करते, हम तो real diamond नहीं है, आप directly बात करो. So I went to this customer of mine in Pune, and that changed everything. He basically gave me an order of 25 lakhs. Of loose moissanite in those days, which was my life's biggest order at that time. First order 25 lakhs, and he said, मेरी बेटी की शादी है, मेरी बेटी पहनेगी ना तो ये हीरा ही लगेगा. Okay. और मैं बात भी कर रहा हूँ ना अभी, मेरे सच में आई एम फीलिंग so, मुझे सब मतलब इस nostalgic, because that one line really changed my life. Okay. And the entire brand was built around it. That when he said मेरी बेटी पहनेगी तो हीरा ही लगेगा, और मैं जो 2 करोड़ की ज्वेलरी उसे देने वाला था, उसकी जगह 25 लाख के मॉइजनाइट दूंगा, और बाकी का पैसे का मैं उसे गोल्ड दूंगा. गोल्ड उस टाइम पे 8,000 का रेट था, आज 62,000 पे है. डायमंड अप्रिशिएट नहीं हुए हैं जितने गोल्ड अप्रिशिएट हुआ है. एंड दैट हिट मी सो हार्ड एट दैट टाइम कि ये ट्रू है.
फिर I started researching diamonds and rest is history. I then got back to Bombay and did my gemological course for a week, understood what diamonds are, what prices they are sold, and what moissanite is. फिर वो machine business तो थोड़ा side रह गया. I got so much interested into diamonds and this pitch कि moissanites को अगर jewelry में जाके awareness create करके अगर लोगों को बेचा जाए तो कितना बड़ा स्कोप हुआ, कितने सारे लोग होंगे. Like a diamond alternative. Diamond alternative. At a very cheap yes, price. at a very cheap price. ये travel में use हो सकता है, ये हर जगह use हो सकता है. And then there was no looking back. We started working strongly towards it. Import किए parcels, moissanite बेचे, loose moissanite, jewelry and everything. And then finally, eventually, after a certain period of time, realized किया कि branding is so important. So that's when the Fiona name was coined and things started happening that way. So my next question is, how did Fiona start? आप धुलिया से बॉम्बे कब आए and कैसे ये start हुआ ये सब? Okay, so वो बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है. मुझे अल्टीमेटली पहले तो बॉम्बे इसलिए नहीं रहना था क्योंकि बॉम्बे में बहुत सारे रिलेटिव्स थे. अच्छा. And you know how relatives can get, ये क्या कर रहा है, ये क्यों नहीं कर रहा है, and you passed out from such a great college, why don't you do a job? तो वो सबसे दूर भागने के लिए मैं पूरा शर्मा जी के बेटे को देखो ऐसा हो गया. तो वही सब हो रहा था मेरे साथ में, इसलिए मैं पूरा गया था. बट जब मुझे ये मॉइसनाइट के बारे में कॉन्फिडेंस आया, आई गॉट बैक टू बॉम्बे. तो आई थिंक हम हमारे एक नेक्स्ट एपिसोड में पूरी फियोना जर्नी और वो कैसे फॉर्म हुआ, बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है. जब मैंने फर्स्ट ऑफिस लिया था यहाँ पे ओपेरा हाउस में, तो उसके पीछे की भी एक बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है. एंड आई गॉट माय अनदर स्मॉल टाइम, एक कोई मुझे मिले थे, एक मेरे काका, उनके होते हुए ये मैंने ऑफिस किस तरह से ली थी और किस तरह के लोग आते थे. अच्छा. और फियोना क्यों बॉर्न हुआ, क्यों उसकी नीड आई मुझे, वो पर्पस कब डिफाइन हुआ, ये सब हम बातें तब करेंगे. और उसका ट्रिगरिंग पॉइंट एक ही था कि जब, मतलब आपको इतना एक साल में बता देता हूँ कि लोग इसको मॉइसनाइट को नेचुरल डायमंड में मिक्स कर करके डायमंड बोल के बेच रहे थे. दैट वाज माय ट्रिगर पॉइंट बिकॉज दैट मेड मी क्वेश्चन एवरीथिंग कि मैं तो दूध बेच रहा हूँ, लोग इसको आगे दही पनीर और पता नहीं क्या क्या बना के बेच रहे हैं, व्हिच इज अ गुड थिंग व्हेन यू टॉक अबाउट दूध. बट मॉइसनाइट को अगर अलग अलग तरीके से बेच रहे हैं तो इन अ वे आई एम फंडिंग टेररिज्म ऑफ हाउ वी कैन बी एथिकल. How I can be ethical. So उसके लिए अवेयरनेस करनी बहुत जरूरी थी, ब्रांडिंग बहुत जरूरी थी, और वो क्यों इवॉल्व हुआ ये सब हम कवर करेंगे हमारे नेक्स्ट एपिसोड. डेफिनेटली.